وہ مثبت اسی طرح آگے چلتی رہیں. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو میڈم. میرا نام طاہر خلیل ہے, میں جنگ سے وابستہ ہوں. میڈم آپ نے ایک بڑا خوش قسم کا پروگرام دیا ہے, اور یہ حوصلہ بخش بھی ہے کہ خواتین کی حیثیت کے حوالے سے جو اقدامات ہونے والے ہیں یقیناً وہ اس کے نتائج جو ہیں جب سامنے آئیں گے تو پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ دنیا کی خواتین میں نمایاں مقام حاصل کر سکیں گی. میڈم, جب کہ آپ اسٹریٹجک پلان بنا رہی ہیں, میں 2-3 باتیں آپ کو پرپوز کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ایک جو آپ کا مشن ہونا چاہیے بنیادی طور پر, ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مقبول دعا تھی, اور وہ قرآن میں منقول ہوئی ہے سورۃ فرقان میں. وہ آخری آیات میں ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب, ہماری بیویوں کو, ہماری بیٹیوں کو, اور بیٹیوں میں وہ بیٹی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو, اسے دنیا بھر کے متقیوں کا امام بنا دینا, لیڈر بنا دینا. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا سٹیٹس جو اسلام نے قرآن کے اس منشور میں دے دیا, تو یہی آپ کا ایک مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو دنیا بھر کے خواتین کا لیڈر بنائیں, اور ہماری خواتین اس قابل ہوں کہ وہ دنیا کی عورتوں کو لیڈ کر سکیں ہر شعبے میں. تو یہ تو ایک بنیادی پرپوزل تھی کہ جو میرا خیال ہے کہ یہاں پر پاکستان کی ہر خاتون کو اسی مشن پہ آنا چاہیے. دوسرا, جیسا کہ آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اصل مسئلہ ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کا. جب تک پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہوگی آپ کا ادارہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے لیے ایک بہت ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا پلان بنایا جائے جو کہ فوری نوعیت کے بھی ہوں, اس میں فوری اقدامات فوری نوعیت کے, اور کچھ طویل مدتی اقدامات بھی ہوں. اب آپ نے 25 نومبر سے اور 10 دسمبر تک جو ایکٹیویزم آپ کرنے جا رہی ہیں, تو اگر آپ کوشش کریں کہ ایک دن جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں, بلکہ سال میں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگ ہونی چاہیے جو پاکستانی خواتین کے نام ہونا چاہیے. اور پارلیمنٹ میں جب ہمارے پارلیمنٹیرینز بولیں گے, ہماری آواز, یہ آواز پورے پاکستان کی آواز ہوگی اور ساری دنیا میں سنی جائے گی. تو آپ کوشش کریں کہ یہاں پر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کی ایک جوائنٹ سیٹنگ پاکستانی خواتین کے نام ڈیڈیکیٹ کریں, اور اسی میں ہی آپ کشمیری خواتین کو بھی سامنے لا سکتی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا, یہ بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک نیشنل ایوارڈ فار ویمن مختلف کیٹیگریز کا آپ اناؤنس کریں, اور یہ ہر سال ہونا چاہیے. جو پاکستان میں 3-4 دن آتے ہیں خواتین کے, خاص طور پر دیہی خواتین کے حوالے سے, تو اس میں ایک نیشنل ایوارڈ جو ہے وہ آپ اناؤنس کریں پاکستانی خواتین کا, اور تاکہ لوگوں کو, ہماری عورتوں کو انکریج ہو. اگر وہ لٹریچر میں کام کر رہی ہیں, اگر وہ پاکستان کی بینکنگ یا اکنامک امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں, تو ہمیں آگے لانا چاہیے. یا جرنلزم کے شعبے میں کوئی نمایاں کام کر رہی ہیں, ان کے لیے آپ انسینٹیو, جو ہم انسینٹیو دیں گے ہماری خواتین اسی رفتار سے آگے بڑھیں گی. اور تیسری پرپوزل یہ تھی کہ نیشنل کمیشن جو آپ کا ہے قومی ادارہ وقار نسواں کا, اس کو کوشش یہ کریں کہ جب آپ صوبوں میں چلی جائیں کہ صوبوں سے آپ ڈسٹرکٹ لیول تک آ جائیں, تاکہ ہر ڈسٹرکٹ میں بھی اس کے ایک چیئر جو ہے وہ بننی چاہیے. اور کوشش یہ کریں کہ پاکستان میں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں, اور خاص طور پر اسلام آباد کا جو مانومنٹ ہے اس میں خواتین کا ایک علیحدہ شعبہ بنوائیں, جو پاکستانی خواتین مادر ملت سے شروع کریں, اور جو پاکستانی خواتین مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھا چکی ہیں ان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ نیشنل مانومنٹ پہ آویزاں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ خواتین ہمارا وقار ہے. جب ہم ان کا نام لیں تو عزت سے نام لیں, ہم ان کی بات کریں احترام اور توقیر سے بات کریں. تو کوشش یہ کریں کہ ہم پاکستان کی خواتین کو ایک باوقار طریقے سے آگے لائیں. پاکستان کی خواتین جو ہے صرف شوبز کے اشتہارات کے لیے نہیں ہیں, بلکہ ہر شعبے میں وہ بہت آگے بڑھی ہیں. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی اسپیکر رہی ہیں,
چیئرمین رہی ہیں, سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین رہی ہیں, تو ہر شعبے میں خواتین کام کر سکتی ہیں. ملٹری میں بہت آگے چلی گئی. پہلی بار ملٹری میں سرجن جنرل جو ہے وہ آئی ہیں محترمہ نگار, میں ان سے ملا ہوں, بہت امپریس کیا ہے. میجر عامر کی وہ بیٹی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں مختلف شعبوں میں جو خواتین ہیں ان کو آگے لانے کے لیے یہ ایک ایجنڈا, نیشنل ایجنڈا تیار کرنا چاہیے, اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ایس احمد شیخ ہے, نیوز چینل پاکستان سے تعلق ہے, اور میں ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں. آپ کی دعوت پر یہاں تشریف لے کے آؤں, بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ محفل سجائی ہے, اور اسپیسیفکلی آپ نے خواتین کے موضوع کے اوپر کام کرنے کا جو اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. طاہر خلیل صاحب نے بہت ساری تجاویز دی ہیں. یقیناً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جب ہمارے ینگسٹر اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں خواتین کو اہمیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرف سوچ رکھتے ہیں, ان کا ویژن ایسا ہے, تو خواتین کو مواقع دیگر حالات میں کمپیریٹیولی پہلے سے بہت زیادہ ملنا شروع ہو چکے ہیں. یہ میڈیا بھی آپ کی آواز بن چکا ہے. گزارش یہ کرنی تھی کہ 73 ایئر سے اب پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے. ہمارا دین جو ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ خواتین کا احترام کیا جائے, لیکن قرآن و سنت کے مطابق بھی ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے اندر جب میڈیا آزاد ہوا, جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں میڈیا کو کافی حد تک ذرائع ملی, لیکن اس میں چند چینلز نے خواتین اور گھریلو ایٹماسفیئر کو اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیا کہ بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو گیا. وہ تقدس مرد کا پامال ہونے لگ گیا. وہ عورت کو ساس اہمیت, بہو کو ساس اہمیت نہیں دینے لگی, بہو جو ہے ساس کو اہمیت نہیں دینے لگی. وہ ایک عجیب سی کشمکش ہوگی. اس کے اندر آپ جو کردار ادا کر رہی ہیں اور جس کا آپ نے اعادہ کیا ہے, ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے میڈیا کا, آپ کی گزشتہ جتنی بھی لائف گزری ہے, ہم سارے لوگ بڑے اچھے طریقے سے واقعی میں آپ نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر خواتین کو اجاگر کرنے کی کوشش کی, اور ان کے مسائل کو آپ نے اٹھایا بھی, ہر فورم کے اوپر آپ نے اٹھایا. اب جہاں تک تعلق ہے کہ اگر خواتین کو لازم ملزوم احمد کے بغیر نہیں چل سکتی ہیں, لیکن جدید دور کے اندر خواتین مردوں سے بہت آگے جا چکی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں, ہماری جو حکومتیں ہیں, وہ اس کو اس انداز سے سوچتی ہیں کہ شاید ہم سے سبقت لے دیں گی. پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں, خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, وہ کام کرنا چاہتی ہیں, بٹ انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا, ان کے وین کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. آپ نے جس طریقے سے یہ پلیٹ فارم سجایا ہے اور اس کی امداد کے ساتھ آپ یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس فیلڈ میں خواتین کام کرے اس کو ایک اچھا انسینٹیو بھی ملے, اس کی بھی ذرائع بھی ہو, اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو, اور اس لیول کو جس کو آپ لے کے جانا چاہ رہی ہیں یہ صرف اسلام آباد کے حد تک محدود نہ ہو, یہ چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر بھی جانا چاہیے. لاہور میں بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, اسلام آباد میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہر دوسرے آدمی نے ایک پلیٹ فارم جو ہے اسی پرپس کے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن ہمیں کن چیزوں کو ہم نے اٹھانا ہے, کن لوگوں کو ہم نے, کن خواتین کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتانا ہے, ہم نے وہ ڈومین لینی ہے. ہمارا ابھی بھی میکسیمم جو 64-67% جو طبقہ ہے وہ بالکل الٹریٹ ہے, ان کو نہیں پتہ ہے. قصبوں سے, گاؤں سے خواتین جو ہیں ان کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں معلوم ہے. وہ آپ ان کو اس طرف سیمینارز کو کنڈکٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سائٹ پہ جائیں گی تاکہ ان لوگوں کو, ان خواتین کو اپنے حقوق کا, رائٹس کا پتہ چل سکے, جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جدید کام ہوگا. شہروں میں تو کر رہے ہیں, سہولیات موجود ہوتی ہیں, سب کچھ موجود ہوتا ہے. بہرحال میں اپنے ادارے کی طرف سے آپ کے ساتھ ہر لمحہ کھڑا ہوں, جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم جانی مالی آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس کاز کے لیے. شکریہ. بہت شکریہ.
میم آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ تشریف رکھنا چاہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم صحافی تو میری سب سے صرف کیونکہ اتنے سینئر لوگ بیٹھیں گے جن سے آج بھی میں سیکھ رہی ہوں تو میں کہہ نہیں سکتی مگر چونکہ بہت بڑے گروپ ہے یہاں پہ اور سب لوگ میرا خیال ہے بولنا چاہیں گے تو اگر مختصر اگر ہم کامنٹس دیں گے تو اس سے سب کی باری آ جائے گی ورنہ یہ نہ ہو یہ والے رہ جائیں اور یہ کہیں ہمیں کیوں بلایا ہے تو پھر لنچ بھی ہوگا تو آپ لوگوں کو بھوک نہ لگ پڑے نا مجھے یہ فکر ہے اور جو لوگ نہیں کوئی کامنٹ دینا چاہتے ضروری نہیں ہے مائک صرف وہ لوگ مانگ لیں جو واقعی کچھ کہنا چاہتے ہیں نا تو آپ پوچھتے جائیں کہ جو لوگ صرف وہ لوگ مائک مانگ لیں کہ جو بولنا چاہیں گے نہیں کوئی بات نہیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم میرا نام امجد محمود ہے اور میں وابستہ ہوں ایکسس نیوز سے آپ نے جو یہ انیشیٹو لی ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں محترم نے جو بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کی بیٹی ہو تو اس کو برا بلا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے ہی بیٹی سے چلا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ نے مطلب کہاں تک اس کا کام کیا اور دوسرا یہ کہ سر نے بات کی کہ چھوٹے قصبوں تک لوگوں کی ابھی تک مطلب 2021 آ چکا ہے لیکن لوگوں کی ابھی تک سوچ ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوگی تو اس بارے میں آپ مطلب کیا کہنا چاہیں گے یا اس کے بارے میں آپ نے کہاں تک کام کیا کہاں تک سوچ لے کے جا سکتی ہیں آپ یا کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے جی ضرور اب یہ جو ہم سب لکھتے جا رہے ہیں اس کا اینڈ میں ہم جواب دیتے جائیں گے سوری میں اپنا کوشچن ایڈ بھی کروں گی رقیہ نعیم انڈیپینڈنٹ اردو سے یہ جیسے آپ ماشاء اللہ سے خود ایکٹیو ہیں تو دوبارہ سے اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ ڈیڈ ہے اور اس میں سیاسی مداخلت تھی اور کچھ فنڈز کی کمی تھی کیا اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیا گراس روٹ لیول پہ کمیٹیاں بن سکیں گی یا پھر وہی صورتحال رہے گی اور کیا اب بھی سیاسی مداخلت ہوگی یا پھر فنڈز کے نظر ہو جائے گا آپ کیا کریں گی کیا کس طرح سے ایکٹیو کریں گی دیکھیے بات یہ کہ میں کوشش یہ کر رہی ہوں اس وقت تو کہ پہلے تو ہم ایک اسٹریٹجی بنا لیں اور پھر ہم اس کے بعد فنڈز کا تعین کر لیں کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلیں گے جیسے یہ اسٹریٹجی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ ہم فنڈز کی طرف آئیں گے اور جیسا کہ ابھی ایکسپریس نیوز سے بھی جو ہمارے بھائی ساتھی آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہم جانا تو چاہیں گے گراس روٹ کی عورت کے پاس کیونکہ مجھے بھی اس بات سے چڑ ہے کہ ہم صرف کانفرنسز میریٹ اور سرینا میں منعقد کریں اور اس کے بعد گھروں میں چلے جائیں تو میں ہوں بھی گراس روٹ کا بندہ میں نے زندگی سیاست میں بلدیہ کے انتخاب سے کی تھی تو میں یہاں تک پہنچی تو اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ ایک دن ہم نے یہ جو ہمارے 16 دن ہے اس میں آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ایک دن ہم نے صرف جو گراس روٹ کی عورت ہے اس کے لیے رکھا ہے اس میں ہر طبقے کو ہم بلا رہے ہیں مزدور ہے کسان ہے جو بھی گراس روٹ کی عورت ہمیں نظر آئے گی بلدیات کی ایک شاکنگ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں بیفور وی پروسیڈ فردر کہ ابھی جو ہمارے کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخاب ہوئے ہیں پورے ملک میں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی خواتین اس وقت کینٹونمنٹ بورڈ میں آئی ہیں کسی کو اندازہ ہے الیکشن جو جیت کے آئی ہیں کتنی خواتین ہیں ایک عورت جیتی ہے اس وقت یہ صورتحال ہے ہماری اس وقت کام آپ سمجھ رہے ہیں ایجنڈا ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ دیکھیے ایک ادارہ ہو کوئی ایک چیز ہو تو پھر تو بندہ کر سکتا ہے لیکن انشاءاللہ شروعات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے جیسے بندے کی اسکائی از دا لمٹ اللہ ساتھ دے گا انشاءاللہ اور آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہمیں تو ایک دن ہم ہرنائی میں رکھ رہے ہیں جو ہرنائی میں متاثرہ خواتین ہیں ایک جو بلوچستان کی ہمارا جو دن ہے ان 16 دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ ہم ہرنائی جا رہے ہیں ہم ہرنائی کی ان خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں پریگننٹ عورتیں بچے جن کے اپاہج ہو گئے ہیں این ڈی ایم اے کے ساتھ ابھی ہماری میٹنگ ہے کل ان کے ساتھ ہماری بات چیت تو مطلب ہے کہ اب دیکھنا ہر سائٹ کو ہے نا جو آسمانی آفات سے متاثرہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی ہم نے سدباب کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جی بی کو بھی دیکھ رہے ہیں ابھی اے جے کے جانا ہے تو ہر صوبے کے اپنے ڈائمینشنز ہیں اور اپنے ایشوز نکل رہے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں اور طاہر میر صاحب نے جو آیت دی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہم مان لکھا چھوڑیں نیشنل کمیشن کے اوپر یہ ہمارے لیے کہ دس از ونڈرفل یہ تو آپ کا بہت شکریہ یہ ضرور کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چیئرمین مائن میرا نام ہے راجہ نوید اختر چیئرمین مائن اینڈ منرل انشاءاللہ میڈم آپ کے ساتھ پہلے بھی کام کیے ہیں کاف دور میں تو ناظم بھی رہے ہیں تو اسے انشاءاللہ آگے آپ جو ڈیوٹی لے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جانا بس اس میں خواتین کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے شکریہ
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबशा कुरैशी है और मैं तकरीबन 23-24 साल से सहावत के शोबे से वाबस्ता हूँ। और मैडम आपको याद होगा उस आपके प्लेटफॉर्म से आप अक्सर मैं आपके साथ जाती थी, वो ख़ास तौर पर वहाँ पे जो फंक्शंस होते थे ये ह्यूमन क्राइसिस सेंटर में, आपको भी शायद मेरी तरह जाना पहचाना लगे। अक्सर जगहों में हम लोग इकट्ठे जाते थे और कहीं पे अगर मैं भूल भी जाती थी तो मुझे याद है आप फ़ोन करके मुझे बुला लेती थी। तो उस वक्त भी आपके बहुत अच्छे मंसूबे थे और अभी मैं यहाँ बैठे हुए आपकी जो ब्रीफिंग सुन रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मैं इस चीज़ की आई विटनेस हूँ कि आप जो कहती हैं वो करती भी हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो आप मंसूबे शुरू कर रही हैं, जो भी प्रोग्राम शुरू कर रही हैं, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ होंगे और आपके शाना बिशाना चलेंगे, क्योंकि ये मुस्बत काम है और स्पेशली ख़वातीन के लिए है। तो इस वजह से मेरे अंदर तो पता नहीं इस वक्त खून बढ़ गया है आपकी बातें सुन के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला हफीज़ है। गुज़िश्ता 10 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। ख़वातीन और एजुकेशन पर काम करती हूँ, बच्चों के लिए लिखती हूँ। आपने जितने भी प्रोग्राम के बारे में बताया वो बहुत अच्छे हैं। हमारी दुआ है कि वो बहुत अच्छे तरीके से हसन तरीके से चलें और पाए तकमील को पहुँचे। तकमील को क्या पहुँचे, सिलसिला चलता रहे, बेहतरी आती रहे, हम आपके साथ हैं। दो तीन बातें आपने कही, उन पे कमेंट ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने जैसे कि कहा कि ख़वातीन के हवाले से हरासमेंट की आपने बात की। तो हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक हकीकत है जिसको हम झुठलाते रहते हैं और मेरा ख्याल है अब वक्त है कि कानून साजी हो गई है। हम जो है वो आइन पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ दिखाई दे रही हो ये है कि वो कानून साजी सिर्फ हरे रंग की किताब का हिस्सा है, जैसे और बहुत सारी वहाँ पर कवानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं है। तो आई एक्सपेक्ट कि आपकी आमद के बाद वो चीज़ें जो आपकी डोमेन में आती हैं, वो कवानीन जो आपकी डोमेन में आते हैं और जहाँ तक आप उन पर इम्प्लीमेंटेशंस को यकीनी बना सकती हैं, क्योंकि जब डाटा शेयर करने की बात हो रही है तो हम कुछ करेंगे तो डाटा शेयर करेंगे ना, कोई जज़ा और सज़ा का अमल होगा तो वो शेयरिंग होगी। और आप जब अक़वाम मुत्तहिदा में केस लेकर जाएंगी पाकिस्तान का, तो हम भी सर फ़ख्र से बुलंद करके वहाँ पे कह सकें कि हम पाकिस्तान से आए हैं जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है, अमली काम हो रहा है, तो ज़बानी जमा खर्च ना हो। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी डोमेन में इनमें से कौन सी चीज़ें आती हैं, बिकॉज यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों का क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री मौजूद है, वो क्या काम कर रही है वो हम देख रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर सिविल सोसाइटी मौजूद है, वो अपने तौर पर अपने तय, क्योंकि ज़ाहिर अपनी कोई सरकारी हैसियत नहीं है तो वो जो काम कर सकती करे। तो आपका कमीशन जो है, आपने एक लंबा चौड़ा प्लान दिया है, लेकिन फौरी तौर पर ख़वातीन की फलाह के लिए आप क्या अमली इक़दाम करने जा रही हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल था कि एंड में आके सारे सवालात के जवाब दें, लेकिन चूंकि ये ऐसा इशू आपने मुझसे पूछ लिया है, देखिए फौरी तौर पे तो जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन उसको हमने फोकस किया है और दैट इज़ द प्रायोरिटी नंबर 1, क्योंकि इस वक्त वायलेंस की बहुत सख्त बड़ी वेव चली हुई है। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाले कवानीन के ऊपर काम करना चाहते हैं और इसके साथ साथ जो कानून बन चुके हैं उसमें से बहुत सारे कवानीन जो है आपको पता है मेरे हाथ से बने हुए वो कवानीन, उनके ऊपर अमल दरामद करवाना है। और उन कवानीन में भी गैप्स हैं, जैसे गैरत के नाम पे कत्ल वाला बिल जब 2004 में हमने बनाया था तो उसमें कमियां रह गई थी, मुकम्मल नहीं था वो, अब उसको रिव्यू करना है और उसको मुकम्मल करना है। सो मेरी पहली जो तरजीह है वो ये है कि जो खवातीन पे तशद्दुद के खिलाफ कवानीन है उनको हटाएं। दूसरी जो तरजीह है इस वक्त जो मेरे जहन में, अभी तो स्ट्रेटेजिक प्लान बनना है, दूसरी तरजीह है कि जो पॉलिटिकल हमारी रिफॉर्म्स हो चुके हैं उनमें भी बहुत सारे लकूनस और कमी है। आप सोचिए कि जब हमें ये पता लगा कि एक औरत जीती है इलेक्शन कंट्रोलमेंट बोर्ड पूरे पाकिस्तान का, तो मेरे तो पैरों को नीचे से जमीन ही निकल गई ना, डिप्रेशन में आ गई मैं सख्त। मैंने कहा होगा क्या। तो फिर जब हमने चेक किया तो आपको सुन के हैरत भी होगी और यकीन भी आ जाना चाहिए कि 1924 का कानून है जो आज तक हम खवातीन पे लागू हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड्स के हिसाब से, 1924 का।
2002 में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की गई थी, उसके बाद 2014 में मेरा ख्याल में दोबारा हुई है, लेजिस्लेशन उसके ऊपर पास हुई है, सब कुछ हुआ है, सब चीज़ों में हो गया। माइनॉरिटी को भी एक सीट दे दी गई, लेकिन खवातीन की सीट के बारे में क्या लिखा हुआ उसमें कानून में? वुमन, पेजेंट, किसान, औरत, यूथ। माइनॉरिटी ने किसी स्टेज पे थोड़ा सा शोर मचा के अच्छा हुआ उनको हक मिल गया, उनको एक सीट अलग कर दी है। तो हमारी सीट के ऊपर या किसान आएगा, या यूथ आएगा, या हम आ जाएंगे, या स्लैश है मजदूर, लेबर भी है। लेबर मैं साउथ में कर रही थी। आप हालात देख रहे हैं। सो अब हमने जो चिट्ठी निकाली है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो ये लिखा है कि अब तो हो नहीं सकता कुछ, इलेक्शन तो हो चुका है, मैं तो ऑफिस में लेट आई हूँ ना, तो मेरे से पहले ये सब काम हो चुके थे। अब हमने तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को खत लिखा है कि खुदारा ये जो सीटें रिजर्व रह गई हैं, बेशक लेबर लाएं, बेशक यूथ लाएं, बेशक किसान लाएं, लेकिन उसमें औरत ले आए कि हमारी जहां जहां कैंटोनमेंट की बैठक लगेगी कोई एक आध औरत तो कॉस्मेटिक के लिए लगा देना, चेंज के लिए। तो ये खत हमने निकाले हैं। फिर हमने एक और खत इस्तदा की है कि जो तैनाती होनी है हमारी सिविलियन साइट की आर्मी की तरफ से, उसमें हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि उसमें खवातीन की तैनाती की जाए, क्योंकि रिटायर्ड कैंटोनमेंट बोर्ड में प्रिंसिपल्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, हॉस्पिटल की डॉक्टर्स होती हैं, पढ़ी लिखी खवातीन कैंटोनमेंट में भी रहती हैं, तो वो इलेक्शन के बगैर नामजदगी आधा जो कैंटोनमेंट बोर्ड का हिस्सा होता है, उस पर हमने रिक्वेस्ट की है। और अभी ये हमारी सारी बहस मुबासा चल रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर इस वक्त, जो जरा लेट है, लेकिन मैं समझती हूँ अगर आज हम इब्तिदा करेंगे तो वो अगले इलेक्शन तक का आरामद हो जाएगा। अभी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हमने बात करनी है कि लोकल गवर्नमेंट जो 33% सीटें किस तरह हुई थी, ये वो लोग जानते हैं जो उस वक्त मेरे साथ काम कर रहे थे, कि किस तरह हमने ये लोकल गवर्नमेंट की 33% सीट हासिल की थी। सो तरजीहात बहुत सारी है, मेरा दिल चाहता है मगर मैं ख्वाब नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैंने आई लर्न द हार्ड वे। पिछली दफा जब मैंने ये वजारत रखी भी थी ना, तो मैं आई वॉज यंगर और मैं हेड ऑन लेती थी हर चीज को। अब मैं जरा स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकली चल रही हूँ, स्ट्रेटेजी बना रही हूँ, क्योंकि 12 के बाद 21 में दोबारा मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ इस दफा मैं हेड ऑन ना लूँ, टेबल टॉक्स करके चीजें मनवा लूँ। मेरा नाम इकरार जाकिर और हम दोनों ऑफिशियल न्यूज़ से। तो मैं पहले तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम आपके साथ हैं। और सेकंड चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, अभी भी हमें ख़वातीन को ये नहीं पता कि हमारे क्या हुकूक हैं। और दूसरी चीज़ मेरी आंखों दिख रही है हाल हुआ है कि मेरी फैमिली में, इवन कि हमारी फैमिली में भी लड़कियों को मतलब उनकी जायदाद से अलग कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि जो इवन के जो भाई भी हैं, कुछ हमारी फैमिली में भी नहीं, वैसे भी आजकल भी ये हो रहा है कि जो भाई हैं वो ख़वातीन को जायदाद से कहते हैं कि ये मेरी बिल्कुल निकाल देते हैं और लिखवाते हैं, बाकायदा लिखवाते हैं कि हम सिर्फ भाई हैं, बहनें हमारी कोई नहीं है, या अगर है भी तो वो उनकी डेथ हो गई है। तो इस बारे में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? मैं ये जस्ट पूछना जी, विरासत के कानून पे तो काफी काम हुआ है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि इम्प्लीमेंटेशन। आप हैरान होंगे कि जब मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, वहाँ की जो इंचार्ज खवातीन उनसे पूछती हूँ कि जो नया लॉ बने उनके बारे में आपको पता है, तो कहती है हाँ हमने टीवी पे देखा था। समझ आ रही है? जो थाने में लोग बैठे हैं उनको भी उस कानून के मुताबिक आगे ही नहीं है। तो ये काम बहुत जरा एजेंडा बड़ा है, लेकिन होगा इंशाल्लाह ताला। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक हेल्पलाइन मौजूद है, उसका नंबर क्या है? 1099। उस पे 3 वकला होते हैं, तो प्लीज उनसे भी आप लोग राब्ता कर लिया करें। और हमारी NCSW की वेबसाइट भी मौजूद है, हम भी हर वक्त हाजिर है अगर कोई जरूरत हो। और हमारी बहुत अच्छी मीटिंग एहसास प्रोग्राम से भी हो गई है। सो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से हम सानिया निश्चित साहिबा के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कुछ निकलेगा मामला इसमें से। कोई और स्टेबल पे? जी अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र हाशमी, रोज़नामा दुनिया से। मेरी अगरचे ये बीट तो नहीं है, लेकिन फौजिया के पुरखुलूस दावत पर और आपका नाम सुनकर मैं समझिए मेरी वजह से आए। मैंने बाद में कहा कि आपका नाम सुनकर फिर मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में ज़रूर जाना चाहिए। आपको हम बड़े तवील अरसे से जानते हैं
اور میرا خیال ہے کہ آپ کو مشورے دینے کی تجاویز دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی, تو آپ کے ہوتے ہوئے یقیناً اس شعبے میں جو ہے وہ بہت کوئی اچھا کام ہونے والا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ڈلیور, آپ نے پہلے بھی جب آپ کی ذمہ داریاں رہیں تو آپ نے ڈلیور کیا, اور اب بھی مزید تجربے کے ساتھ آپ نے کہا 12 سال کے بعد آپ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اور دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہیں, تو یقیناً اس دور میں جو آپ نے اونچ نیچ دیکھی ہے اس سے بھی آپ کو بہت کچھ تجربہ حاصل ہوا ہوگا. تو آپ یہاں پہ ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہراسمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ اس جانب بھی توجہ دیں کہ جو تھانوں کی صورتحال ہے, جو جیلوں کی صورتحال ہے, وہاں پر خواتین کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ کام کرنے کی اور اصلاح کی ضرورت ہے. اس جانب بھی آپ ضرور توجہ دیجیے گا. تو باقی جہاں تک آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ایک خاتون کی جیتنے کا ذکر کیا, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی خود اتنی بڑی حکومت میں صرف 3 وزیر ہیں خواتین, تو یہ ریشو آپ یہ دیکھیے ذرا, تھوڑا سا حکومت کو بھی کہیں کہ وہ بھی خواتین کی پارٹیسپیشن کو بڑھائیں, کیونکہ بہت سی تجربے کار اچھی باصلاحیت خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں, اور بہت سے کابینہ میں وزیر ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ وزیر اعظم کے علاوہ تو کسی کی پرفارمنس نظر نہیں آتی. تو بس میرا یہی آپ سے کہنا ہے کہ, اور یہ امید ہے کہ یقیناً آپ کے ہوتے ہوئے یہ ادارہ جو ہے بہت کچھ ڈیلیور کرے گا, خواتین کی حقیقی معنوں میں خدمت ہو سکے گی. یقیناً بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اس پر بہت عبور اور تجربہ حاصل ہے. آپ یقیناً خواتین کی حالت کو بدلنے میں, ان کے حقوق کو انہیں حقوق دلوانے میں یقیناً اچھا کام کریں گے. جی السلام علیکم میم. پہلے تو آپ ہمیشہ ہمیں 1 to 1 یاد رکھتے ہیں اور ہم آپ کی پرسنل کال پہ اور میسیجز پر ہی آتے ہیں. جب آپ اپنی کمیونٹی وزٹس کی بات کر رہی تھیں تو مجھے یاد آ رہا تھا وہ کیس جس کی وجہ سے ہم کوئی 4-5 لیڈی رپورٹر ہوا کرتی تھی جنوبی پنجاب میں. تو ہم نے اپنے آپ کو مضبوط سمجھا اور ہم SSP کے اور DPO کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کرنے کے قابل ہوئے جب ایک تھانہ کی حدود میں رات کو 12 بجے پولیس وین ہی میں کچھ خواتین کے ساتھ اجتماعی ریپ ہوا تھا, اور آپ اس وقت وفاقی وزیر تھیں اور آپ ملتان آئی تھیں. اور وہ دن ہمارے لیے ایسے تھا کہ ہماری کوئی مرد بھی نہیں سنتے تھے, اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی عورتیں تھیں, کیا عورتیں تھیں. جب آپ ان کے گھر میں گئیں اور ان کی گلیاں نہیں پتہ چلتی تھی, ایک انسان کے گزرنے کا وہ راستہ نہیں لگتا تھا, جہاں آپ کیچڑوں پہ گزر کے ہمارے ساتھ گئیں, تو آپ یقین کریں اس کے بعد ہمیں ایک جو امپاورمنٹ آپ ہمیں دے کر گئی تھی, اور اس کے بعد فالو اپ دینا بہت آسان ہو گیا تھا اس کیس پہ, اور وہ باور کروایا گیا تھا کہ ان عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ کی وجہ سے میڈیکل ہونا یقینی ہوا. ابھی جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ خواتین پولیس والیوں کو FIR لکھنے نہیں آتی, میم آپ یقین کریں مردوں کو بھی نہیں لکھنی آتی. ان کی خبر کی ان کی FIR کی وجہ سے ہم کو خبر نہیں بنانی آتی. ہم بھی آشنا لکھتے ہیں, ہم بھی لکھتے ہیں کہ 4 بچوں کی ماں ایک اس کے ساتھ فرار ہو گئی, کیونکہ ہمیں نقل مارنے کی اور ابھی بھی ہمیں کاپی پیسٹ کرنے کی عادت ہے. اور جب ہم یہ لکھتے ہیں, ہمیں یہ ایتھیکل جرنلزم جب سکھائی جاتی ہے تو ہماری ایتھیکل جرنلزم اس وقت فیل ہو جاتی ہے جس وقت ہم FIR دیکھتے ہیں کہ ہمیں FIR کے مطابق چلنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ FIR تو جن کو بنانی نہیں آتی وہ بنا رہے ہیں. تو میں آپ کو تجویز دے دوں گی ایک پوائنٹ کہ صرف اور صرف اگر ہم کچھ وکلا کو, کچھ سینسٹائز وکلا کو, کچھ سینسٹائز رپورٹرز کو, صحافیوں کو کچھ ایسا وہ بنا دیں کہ ہم FIR لکھنے والوں کے لیے کام کریں, تاکہ بس ایک پوائنٹ کہ تھانے کی سطح پر خواتین کی رسائی ممکن بنائی جائے, اور ان بلڈنگوں کا بھی حساب لیا جائے جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ادارے ہیں, ہماری بلڈنگ ہے, ان کو تالے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, اندر پولیس والے ہوتے ہیں اور باہر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی اندر سے تالے کیوں لگے ہوئے ہیں نا. ان کے اندر کا بھی آپ حساب کریں کہ تھانوں میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو. تھینک یو, بہت تھینک یو سو مچ. FIR ہی کمزور ہے تو کیس کا کیا ہونا ہے. آئی ایگری میم بہت شکریہ. پہلے تو آپ مبارکباد قبول کریں, بڑے عرصے بعد آپ واپس آئی اور اچھے
जज्बे से आए हैं। काफ़ी सारी बात हो गई, हमारे सीनियर दोस्तों ने भी की, बाकी दोस्तों ने भी की। मैंने आज इतना करना था कि खातून जो है, हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वो तालीम के साथ जो है ना हरासमेंट का भी मुकाबला कर सकती है, जायदाद में से हिस्सा भी ले सकती है, आप तक भी अप्रोच कर सकती है, बलोच साहब तक भी अप्रोच कर सकती है, मीडिया तक भी अप्रोच कर सकती है। मेरा ताल्लुक पसमानदा इलाके से है, थल से है। थल जो है 60 डिस्ट्रिक्ट है, खुशाब है, मियाँ वाली है, बखर है, लैया है, मुजफ्फरगढ़ है, जंग है, चिन्योट है। 19 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 37 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये एरिया मुल्तान से बड़ा एरिया है, बहावलपुर से बड़ा एरिया है, सियासी इकाई के तौर पे भी, रकबे के लिहाज से भी और दीगर इश्यूज के हवाले से। लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ये है कि इन 60 डिस्ट्रिक्ट में कोई वोमेन यूनिवर्सिटी नहीं, कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई एक टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, कोई एक वोमेन की जो है टेक्नोलॉजी कॉलेज कह दे वो नहीं है। इस एरिया से कोई मोटरवे नहीं गुजरता, इस एरिया में कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं। इसका इम्पैक्ट जो है वो खवातीन पे जाता है। अब माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा। जब हम तालीम पे फोकस करने की बजाय माँ की हरासमेंट पे फोकस करते हैं, वो हो तो जाती है, उसे इंसाफ भी शायद मिल जाता होगा आपके नोटिस लेने से, मीडिया में छपने से या हुकूमती इक़दाम की वजह से। लेकिन जो उसके बच्चे हैं जिनका हक है बुनियादी तालीम, अब वो क्या रहा है कि सारी यूनिवर्सिटीज पिंडी में आ गई, सारे मेडिकल कॉलेज लाहौर फोकस हो गए, सारी इंडस्ट्री फैसलाबाद तक चली गई है। एक इतना बड़ा एरिया जो कि कराची के बराबर आबादी रखता है, उसमें ना हाई कोर्ट का बेंच है इन 7 डिस्ट्रिक्ट में, इन 7 डिस्ट्रिक्ट में ना कोई डिविजनल हेडक्वार्टर है। और ये शानदार एरिया है, याद रहे यहाँ पे कालाबाग डैम का मकाम है, इसको एक साइड से इंडस कवर करता है, बड़ा दरिया है हमारा, इसके अलावा दरिया नहीं है। दूसरी साइड पे चनाब करता है, इसके पाँव जो है वो हेड पांचनाथ को लगते हैं और सब जो है जेलम को लगता है। लेकिन इसके अंदर की सूरत हाल ये है कि खवातीन का तो मैं क्या अर्ज करूं कि वो क्या जिंदगी गुजारेंगे। मतलब आप वहां नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं कि आप तलागंग से सफर करें तो आपको काते रोड मिलेगा, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप जंग से शोरकोट से सफर करें तो उस रोड की बदतरीन सूरत हाल है। हम एक ऐसे अजाब में घिरे हुए हैं, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, वो एक मुश्किल में है और फिर माइग्रेशन हो रही है, वहां से रेवेन्यू निकल के लाहौर जा रहा है तालीम की वजह से, इलाज की वजह से इंडिया आ रहा है। और हुकूमत का जो फोकस है बसात एहतराम, वो सिर्फ जो है बड़े शहर तक है। और इस आबादी को अगर किसी हिसाब से, मैं आपके लास्ट में फैमिली आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, आपकी जितनी डोमेन है वो तो आप करें। दूसरा ये है कि आप कम से कम ये रिकमेंड करें हुकूमत को कि इतना बड़ा एरिया जो थल का है, इतना फर्टाइल एरिया है, इतनी जफाकश खवातीन हैं, लोग हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कम से कम तालीम का तो बंदोबस्त करें। मतलब उनको अब हमारे लैया में एक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बनाएगी परवेज इलाही साहब के दौर में, जमीन अलाट हुई, बिल्डिंग बनी, उसके बाद यूनिवर्सिटी गायब है। हमारे लैये में यूनिवर्सिटी का कैंपस बना 10 साल से इसलिए खड़ा हुआ है कि इफ्तिताह करने कोई नहीं चाहता। तो ये इश्यूज जो हैं हमारे हैं, आप अपने तौर पे, क्योंकि हम आपसे तवक्को रखते हैं और ये समझते हैं कि आप कर सकते हैं, कम से कम आप ये सजेशन, ये रिकमेंडेशन जो है प्राइम मिनिस्टर से, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्का है जिसका मैं अर्ज कर रहा हूँ, मियाँ वाली इसी थल में आता है, कालाबाग इसी थल में आता है, झांग इसी उसमें आता है। तो ये आप अपनी बीइंग सीनियर लीडर है, आप सिर्फ इस कमीशन की वो नहीं है, आपकी खासा असर और रसूख भी है, मीडिया भी आपके दोस्त साहब इस चीज़ को अमून करते हैं। तो बराए करम हमारी जो माँ है, बहन है, बेटी है, उसे घर के करीब तालीम तो दें। तालीम पहले महंगी है, अब लाहौर भेजना बच्चियों को, पिंडी भेजना, अब मुजफ्फरगढ़ की हालत देख लें, 5 तहसीलें हैं, उसकी 6 कौमी असम्बली की सीटें हैं, कोई दर्जन से ज्यादा उसकी सूबाई असम्बली की, ना यूनिवर्सिटी है, ना यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मतलब और रोजाना वहाँ वाकयात होते हैं, आप मतलब 7 घर के लोग जला दिए गए, और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। बसात एहतराम आप प्राइम मिनिस्टर साहब से जब भी आपकी मुलाकात हो, या आप उन्हें कोई उनके ऑफिस को इस चीज़ से आगाह करें कि हमें तालीम दें,
रोजगार हमारा है, हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, पानी हमारे पास है, जवान हमारे पास है, हमें तालीम जो है वो कम से कम घर के करीब दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रास्ता साहब। मेरा ताल्लुक भी खुशाक से है। अच्छा, तो आप भी ठाक से हो गए? खुशाक से बहुत आगे अंदर गाँव है। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे वैसे ये सूरत हाल का अंदाजा नहीं था, बिकॉज सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हुआ कि स्टोर से चीफ मिनिस्टर भी है खालिद खुर्शीद, तो मैं गर्ल्स कॉलेज विजिट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी स्टोर में जो गर्ल्स कॉलेज है वो आबाद नहीं हो सक रहा, बिल्डिंग खड़ी है। तो फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने कहा जी वहाँ को पढ़ाने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा क्यों तैयार नहीं है? उन्होंने कहा जी इसलिए तैयार नहीं कि वहाँ पर फीमेल टीचर्स की या प्रिंसिपल की अकोमोडेशन नहीं है। मैंने कहा अकोमोडेशन क्यों नहीं? अब हम ये इन्वेस्टिगेट करते जा रहे हैं, मैंडेट तो नहीं है मेरा, मगर हम घुस गए इसके बीच में। उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्टर ने काम खत्म किया हुआ कई साल से, उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो वो हैंड ओवर ही नहीं करता बिल्डिंग। आपको समझ आ रही है? कई दफा इश्यूज ऐसे होते हैं, उनकी तह में जाना पड़ता है। आपने मुझे 2 बिल्डिंग्स की निशानदेही की है, आपने फौरी तौर से इस बिल्डिंग के बाद मुझे उसकी डिटेल्स देनी है। लेट्स गेट इनटू इट। देखें जो हम फौरी तौर से खुद कर सकते हैं उस पर तो कुछ करें ना। अगर बिल्डिंग खड़ी है फिर तो जरा आसानी हो जाएगी काम की, ठीक है? ये करना है हमने। इसमें को औरतों का भी खवातीन का भी है ये खवातीन अब ज़ाहिर मैम जब यूनिवर्सिटी वजूद में आएगी तो पूरा एक कैंपस आएगा। और ठीक है बट डन हो गया जी, डन हो गया। इस पे काम करूंगी मैं आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रऊफ राजा है और मैं सेक्रेटरी इंटरनेशनल टूरिज्म और पाकिस्तान होटल्स का और टूरिज्म एसोसिएशन का। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस कॉन्फ्रेंस में आने का। माशाल्लाह मिस फौजिया ने आमिर साहब को कहा, उनकी वजह से हमें इस सेशन में आया और मुझे फर्स्ट टाइम आपको देख के और आपका इन्फ्लुएंशियल ये सारी जो गुफ्तगू सुन के और वुमेन के ऊपर, मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा टूरिज्म में वुमेन का कहाँ पे रोल है, आपका कमीशन कहाँ पे उनकी हेल्प कर रहा है और हम आपकी कहाँ पे फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, हेल्पफुल साबित हो सकते हैं टूरिज्म सेक्टर? हम कोशिश तो करते हैं कि जवाब एंड में दें, मगर चूंकि ये छोटा सा मुख्तसर जवाब आपको देती हूँ। कल ही हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स में मुझे उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था और उनके ऊपर मेरी तफसीली बात हुई टूरिज्म सेक्टर में रोल ऑफ वुमेन की। ट्रेनिंग के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस है और बड़े बड़े जो इस वक्त चेन्स हैं वो पाकिस्तान में आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ये मौके भी हैं कि हम अपनी ट्रेन खवातीन को बाहर भेजें। अब हमारे पास ट्रेनिंग के मौके बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने चेंबर ऑफ कॉमर्स से बात की है और बहुत जल्द इसके ऊपर हमारा एक प्लान स्ट्रेटेजी पे आप सुनेंगे। टूरिज्म इज़ वन सब्जेक्ट जो खवातीन के बाद मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मैं फॉर्मर मिनिस्टर फॉर टूरिज्म भी हूँ पाकिस्तान की और मैंने तालीम टूरिज्म में ही हासिल की है, तो इंशाल्लाह इस पर वी विल कोलैबोरेट। अब मुझे लगता है मैं फ़ायदा उठाते हुए बता दूं कि मेरा नाम फौजिया कुसुम राना है, आज टीवी से वाबस्ता हूँ, विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की कन्वीनर हूँ। मैम आपने जो कंट्रोलमेंट की निशानदेही की, मैं उसमें ऐड करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उसको हम इंक्लूसिव बना लें। अभी जैसे नुमाइंदगी की बात है, उसमें पर्सन्स लिविंग विद डिसेबिलिटीज भी शामिल हैं, लेबर भी है, खवातीन भी हैं, किसान भी है, तो क्यों ना हम ट्रांस को भी नुमाइंदगी दे दें। जैसे 33% खवातीन असम्बली में आती हैं, उसी तरह से कंट्रोलमेंट में लोकल बॉडीज की जो हमारी पोजीशंस हैं उनमें भी खवातीन आए और एटलीस्ट हम 33% मांगते हैं और 10% हमारे जो मार्जिनलाइज्ड अदर ग्रुप्स हैं उनको काइंडली अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इधर जितने भी मसाइल की निशानदेही हो रही है, आपका जो कमीशन जिन पे काम कर रहा है वहाँ पर ग्रास रूट से लोगों को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। हुकूक पाकिस्तान की मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जितनी भी अभी जो खवातीन और जेंडर से रिलेटेड कवानीन की बात हुई है, इनकी एक मैसिव कैंपेन जो कि मैंने कवर भी की हैं, चाहे हम विरासत के हुकूक की बात करते हैं, निकाहनामा राइट्स की बात करते हैं, दीगर हिरासती के हवाले से अगर मैं हवाला देती चलूँ, तो ये सारी चीज़ों पर कोशिश कर रहे होते हैं काम करने की। लेकिन जो हमारी वो खवातीन हैं जिनको शायद जो नई कानून साजी आ रही होती है उन हवालों से आगाही नहीं होती, फिर जो थाने वाले हैं जब केसेस हो जाते हैं तो क्या अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं उस हवाले से वो आगाह नहीं होते, और जो लॉयर्स हैं कौन सी दफात उन्होंने लगानी होती हैं, तो ये सारी कैपेसिटी बनती है जिसमें आम शहरी भी हैं, जिसमें मैं जिक्र करना चाहूंगी कि रेडियो पाकिस्तान का बहुत किरदार है। छोटे छोटे स्पॉट्स हम चला सकते हैं, 30 सेकंड के, 20 सेकंड के, 15 सेकंड्स के, इवन हम अपनी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन का मैं हवाला दूंगी। प्राइवेट मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पब्लिक सर्विस मैसेज जो कि डोमेन भी है, पैमरा के लॉज में भी शामिल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अगर जो हमारा जो कमीशन है वो काइंडली
अवेयरनेस के हवाले से छोटी छोटी कैंपेन्स हैं, छोटे छोटे हेडर्स अखबारों पे चल जाते हैं, टॉप पे छोटा सा ऐड लगा होता है, उसमें बहुत लाखों रुपए नहीं लगते हैं। शायद कभी कभी आप बहुत ज्यादा लाइक मंथली या क्वार्टरली कैंपेन्स ले रहे होते, इतना सारा हम फ्री काम ले सकते हैं और ये सारी आपकी सपोर्ट बैठी है। मैंने शायद उतने खुलूस से इनवाइट नहीं किया, जब आपका नाम सुना तो यकीन कीजिए किसी ब्यूरो चीफ ने ये नहीं कहा कि नहीं हम कहीं और मसरूफ हैं, पॉलिटिकल आज कवरेज है, सबने कहा जी जी बिल्कुल नीलोफर साहिबा हम जरूर टीम भिजवा रहे हैं। तो मैं एक दफा सबकी शुक्रगुजार भी हूँ। अगर आप कोई माइक लेना चाहता है तो थैंक यू मैम। अगर आप में से कोई माइक लेना चाह रहा है, वरना फिर नीलोफर साहिबा की कमेंट्स ले लेते हैं। कोई भी आप में से कमेंट, तारुफ, एनीथिंग प्लीज। आफ्ताब जहान GTV न्यूज़ से। बेसिकली मेरा ताल्लुक चित्राल से है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आपने अभी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जो ख़वातीन की हुकूक है उनके ऊपर आप काम करेंगे। तो चित्राल को तो सारे किसी न किसी वजह से सब जानते हैं, लेकिन जो आजकल में और रवां साल या इससे पिछले भी सालों में जो बेसिक मसला चित्राल में चल रहा है वो यही है कि वहाँ पे जो ख़वातीन है वो घरेलू नाचाकी की वजह से ख़ुदकुशियों का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके ऊपर इन दिनों पिछले ही महीना में देखा था कि समंदर के उस पार एक जो है उस पर लिखा भी गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो लिखने की हद तक हो रही है। कोई ऐसा रूल या कोई ऐसी अवेयरनेस जो है वहाँ पे ख़वातीन को नहीं दी जा रही है कि उनके पास लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि वो खुदकुशी कर लेती हैं। तो इस हवाले से क्योंकि आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी आप काम कर रही हैं, तो क्या आप चित्राल में ये जो बेसिक मसला है इस हवाले से भी कुछ करेंगे या इसके ऊपर पार्लियामेंट में और भी कोई रूल्स जो है या कोई अवेयरनेस के हवाले से कोई कैंपेन जो है इसमें चला सकेंगे? देखिए, मुझे पता है कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में हाईएस्ट रेट ऑफ वुमेन सुसाइड है, ये शायद आप सबको पता होगा। और ये जब मैं पिछली मरतबा भी वजारत में थी तो उस वक्त भी यही हाल था। जब हमने इसके ऊपर एक रिसर्च करवाई थी तो उसकी दो वजूहत सामने आई। एक तो ये है कि इसमें ख़वातीन ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं इन इलाकों की और मर्द पढ़े लिखे नहीं हैं। और जब कम पढ़े लिखे मर्दों के साथ इनकी शादियाँ हो जाती हैं तो उनकी ज़ाहिर है घर गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो वो फ्रस्ट्रेट होके, और आपको सुन के बड़ा तकलीफ होगी कि वो अक्सर दरिया में छलांग लगाती हैं, बहुत सख्त ठंडे दरिया हैं उनके, तो उसकी सपोर्ट करना वो बेहतर समझती हैं जिंदा रहने से। दूसरा ये कि इनके मर्द जो हैं वो सर्दियों में नीचे उतर आते हैं काम करने के लिए, और जो खवातीन चीजें will fall in place automatically, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई वहाँ मशीनरी नहीं है। हाँ, ये हुआ है कि हमारी रिक्वेस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा दी गई हैं 4 खवातीन, ये हो गया गिलगित बल्तिस्तान में, और वो काम कर रही है। एक खवातीन की भी लगाई गई, खवातीन के ग्रुप पे औरत काम कर रही है, लायक लड़की है वो हमारी। तो इस तरह काम तो शुरू हो गया, लेकिन वही बात होगी कि हम चाहते हैं एक वजीर भी आए जो कैबिनेट में हमें नजर आए। इन चीज़ों पे अभी मजीद हम काम करने जा रहे हैं। कई जगहों पे कॉकस से नहीं बने हुए खवातीन के, कॉकस बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का मसला नहीं है, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि ये बड़े बड़े सूबों में भी इतनी मुश्किलात है। छोटे तो बेचारे पसमानदा सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, लेकिन वहाँ उन सूबों के बारे में सोचें जहाँ पर लिटरेसी रेट भी बहुत लो है। कोई और कोई सवाल करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं नरगिस चंद हूँ और तकरीबन 23-24 साल से जर्नलिज्म में हूँ। सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक और खुशी हुई बहुत। आपने बात की जो आपके प्रोजेक्टर के हवाले से कि मीडिया को आपका साथ देना है, हम हर तरह से आपके साथ हैं। मेरा ये सवाल है कि जो ये कोविड की वजह से मीडिया में क्राइसिस आया और उसमें जो ख़वातीन मुतासर हुई हैं, बेरोज़गार हुई हैं, उस हवाले से आप क्या काम करें? कोविड के हवाले से ओवरऑल बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री में थोड़ा क्राइसिस है, लाइक प्रिंट मीडिया का डाउनफॉल है,
पेपर्स पब्लिश नहीं हो रहे और इलेक्ट्रॉनिक बूम है, डिजिटल मीडिया आ गया है, तो अगर जेंडर लेंस का मैं बात करूँ ना, तो जेंडर ऑडिट अगर कराया जाए चेयरपर्सन साहिबा, तो आप ये देखिएगा कि जब कोविड भी आया और क्राइसिस आया तो इदारे में सबसे पहले जो खवातीन रिपोर्टर्स थी, डेस्क पे काम कर रही थी, एडिटिंग में थी, बट अगर किसी भी शोबे से, उनको फायर कर दिया गया और कहा गया, पोस्ट लीव पे भेज दिया गया, हम आपको वापस बुला लेंगे, और वापस नहीं बुलाया गया, लेटर नहीं दिया गया, तनख्वाहें नहीं दी गई, वाजपात नहीं दिए गए। इसकी हम स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ों को हाईलाइट करने की। तो उस हवाले से कमीशन के पास अगर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की मैं बात करूँ, लेबर लॉज की बात करूँ, तो नरगिस आई गेस यही पूछना चाह रही है, क्या कमीशन की भी कोई डोमेन है कि खवातीन जब इस तरह से लेबर लॉज से मुतासिर होती हैं तो क्या कमीशन कोई हेल्प कर सकता है या करता है? डोमेन नहीं भी होगी तो डोमेन बना लेंगे, आप फौरी तौर से चिट्ठी हमें भेजें, ये क्या बात हुई? हम आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है? ये क्या बात हुई? आप मुझे, मैं ये इशू मेरे पास नहीं था, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन देखिए हम स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे थे तो हमारे पास स्पेशल नीड्स वाली खवातीन आई, उन्होंने कहा कि आपने हमारे बारे में क्या किया, तो हम अब कमीशन में एक खातून का इजाफा कर रहे हैं, हम उस कानून पे भी काम कर रहे हैं कि जो स्पेशल हमारी खवातीन हैं, एक उसकी भी नुमाइंदगी हमें होनी चाहिए कमीशन के अंदर, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमें आप बताएं, इसलिए तो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि हमें इश्यूज हाईलाइट करें। सो दिस इशू हैज टू कम टू अस इन राइटिंग, चिट्ठी भेजने आपने हमें, फिर हम इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। नीलूफर बख्तियार साहिबा, आई एम अगेन। मेरा नाम नैयर अली है और मैं स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हूँ न्यूज़ 1 टीवी के साथ। पहले मैंने अपना तारुफ भी नहीं कराया था। यहाँ भी जो मीडिया क्राइसिस के हवाले से भी बात हो रही है, इसमें मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी जो यकीनन आप जब काम करने जा रही होंगी इस इशू के ऊपर तो आपको हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जब खवातीन के दफातर में आप जाएंगी, प्राइवेट मीडिया हो जाए, आप अगर इवन पीटीवी के दफ्तर चली जाएं तो वहाँ भी आप ये बात देखेंगी, लेकिन जो खुसूसन प्राइवेट मीडिया है वहाँ पर दफातर में खवातीन की तादाद बहुत कम है। अगर पूरा स्टाफ जो है वो 300 लोग हैं तो उसमें 3 खवातीन हैं। तो हम अगर बात करते हैं, हम बैरूनी दुनिया की बात करते हैं, इंटरनेशनली जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई कानून है कि दफातर में खवातीन की तादाद की कोई परसेंटेज हो, और इदारे ऐसा नहीं है कि खवातीन जिस तरह से जर्नलिज्म पढ़ के लड़के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उसी रेशो के साथ खवातीन भी निकल रही हैं, वहाँ पे कोई जो है ये तफरीक नहीं है कि खवातीन जो है वो जर्नलिज्म नहीं पढ़ेंगी और हजरात पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे ये इस पॉइंट पे आपकी ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि ख़वातीन की तादाद मीडिया दफातर में ना होने के बराबर है, और आप इसके ऊपर ज़रूर सोचिए कि क्या काम हो सकता है, किस तरह से। हिरासमेंट की बात तो तब करेंगे तो ख़वातीन होंगी, अगर पूरे दफ्तर में है ये खातून तो उस बेचारी ने क्या करना है उधर। तो ये एक पॉइंट जो है इस पर ज़रूर देखिएगा। सो यही जो आप एक खत भेजेंगे हमें अपनी उनकी मराद के बारे में, उसमें हम ये पॉइंट भी अगर डाल दें आप लोग, जो आपके इश्यूज हैं जिन पे हम कुछ आपकी मदद कर सकते, प्लीज हमें हाईलाइट करें। ये वाला सेक्शन बोल नहीं रहा तो मैं खड़े होकर यहीं पे इनकी नुमाइंदगी कर देती। मैंने खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की थी जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, क्योंकि जब हम जेंडर लेंस की बात करते हैं, चाहे वो फुटेज बन रही होती है, जेंडर लेंस का ख्याल रखना, क्योंकि कमीशन के पास बहुत सारे ऐसे वाकयात आ रहे होते हैं जिनको रिपोर्ट करना होता है। तो जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हर तरह की ट्रेनिंग में हमें रिपोर्टर्स नजर आते हैं। तो मैं चाहती हूँ ट्रेनिंग्स जो हैं उनको भी इंक्लूसिव बनाया जाए, क्योंकि जब फुटेज ले रहे होते हैं, चाहे वो ब्लास्ट की हो या किसी भी ऐसे मौके की हो जहाँ पर डिफरेंट जो जिन्स है उसके मुतासरीन हो, तो जिस तरह से ये लोग कैप्चर कर रहे होते हैं, पर आपके फोटोग्राफर्स फोटोज ले रहे होते हैं, अभी भी हमें बहुत सारा ब्लडशेड नजर आ जाता है। चैनल्स कुछ लोग उसको वो नहीं करते हैं ब्लर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जेंडर के हवाले से कवर करते हुए हम वायलेट कर रहे होते हैं, हम उन एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो कमीशन जो है अपने दायरा कार के मुताबिक जब कैपेसिटी बिल्डिंग करे, जब ट्रेनिंग्स करे, तो ग्रुप जो इनवाइट करे वो इंक्लूसिव जरूर होना चाहिए, जिसमें कैमरा पर्सन को खुसूसी तौर पर दावत दी जाए, फोटोग्राफर्स को लाजमी बुलाया जाए, जो एनालिस्ट हमारे पैकेजेस और रिपोर्ट्स और न्यूज की चीजें एडिट करते हैं उनको शामिल किया जाए, जो लोग टिकर्स बना रहे होते हैं, सभी पे हमारे सेक्शन में लोग होते हैं जो एडिटोरियल्स लिख रहे होते हैं। तो खुसूसी तौर पर सबकी अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हम करेंगे और एथिक्स पे बार बार बात करेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी और इदारे का वकार भी मजीद बढ़ता है। देखिए, जो हमने मीडिया फेलोशिप की बात की उसका मकसद ही यही है। अब इससे ज्यादा हमारी भी कैपेसिटी नहीं थी, 40 भी एक बहुत बड़ा नंबर है जिनको हम फेलोशिप ऑफर कर रहे हैं, और इससे पहले ये हुकूमती सतह पे ये स्टेप कभी नहीं हुआ जेंडर के हवाले से। तो
तो ये पहला स्टेप है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें मुख्तलिफ शोबों के लोग अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई आप लोगों ने करना है। अगर 4-6 वही लोग अप्लाई करेंगे जिनकी हमारे तक रसाई है तो फायदा नहीं होगा। प्लीज बाय वर्ड ऑफ माउथ आप लोगों को बताएं, दूसरे शहरों में अपने दोस्तों को बताएं, और जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने अदारों के नामजद करें लोग, ताकि हमें हर तरह का एक मिक्स मिल जाए ना, और फिर काम को आगे लेके चल सके। तो मेरा ख्याल है अब आप लोग, मुझे लग रहा है कुछ भूख भी लग रही होगी ना, लग रही, खाना लग गया भाई मैरिड वालों? एक छोटा सा जी प्लीज शेयर भी अर्ज करना चाहता हूँ। अहमद शेख नाम है, ताल्लुक मेरा है आपके साथ। जी बिल्कुल है। गुजारिश ऐसे है कि खवातीन माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बहू भी है, बहुत एहतराम है इसका, और मर्द इस मसले को उठाने के लिए, इनकी अहमियत के लिए काम करने के लिए शाना बिशाना कर रहा है। और इसके ऊपर मैं चंद ही अल्फाज में एक शेर कह के ख़त्म करना चाहूँगा। ऑलमोस्ट सवालात तो सबके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने समझा कि एक शेर ख़वातीन की नज़र कर दूँ, स्पेशली आपकी खातिर। दरख्तों से गिरने वाले वो पत्ते नहीं हैं हम, दरख्तों से गिरने वाले वो पत्ते नहीं हैं हम, जाओ आंधियों से कहो अपनी औकात में